leaders, students, though have gone through this AI curriculum and able to create some wonderful AI projects. So basically, before understanding about AI projects, I want to state this thing like CBSE has an intel before launching a AI curriculum. What we had done, हम लोगों ने कुछ एक pilot batch किया था for trying this curriculum with the Indian students, like whether this curriculum is fruitful, suitable, or adaptable with our students or not. What are the results? So basically, we have taken some schools of all the domains, private, government, semi-government, and all the types like from the tier 3 cities, even from the metro cities. And then we have run this project or this curriculum, AI curriculum, to those students. And after completing the AI curriculum, AI course content, those students came up with a wonderful idea and developed some projects. So let's discuss those projects. Out of those projects, one of this is AI disease shoot. So this project is created by two masters, Ansh Tulsian and Rohan S. Nair from DPS Delhi Public School, Bangalore, East Bangalore. So what they have created, this is the device. This is the device which is shown by them. This is the device which looks like a printer or a scanner, we can say. Yes, this has a scanning feature. So what this device does, basically, if we consider the rural India, so what is the biggest problem? They have problems. They want to complain those problems to the concerned department, but they don't know like where to go to file those problems or to apply those problems or to the problems, and even some of them don't know how to write. So what they can do, they can write in their local language. This device right now can work with the 8 different language. So they can write or can ask someone to write in their local language and can insert that complaint paper to this device. Now what device does, this device scan that letter or a application letter and then digitize that and detect some keywords from that problem letter, application letter. And after that, after detecting those keywords, that then it identify the relevant government department. Like I have a problem of electricity. Like in my area, there is no electricity or there is a fault in electricity right from the last 5 days, and there is no electricity which is coming from the last 5 days. And I want to complain this thing like in my area, there is no electricity from the last 5 days. So I have written a complaint letter, but I don't know where to file it to the concerned department. So I will go to this device and insert that problem letter. Now keyword here is electricity. So this device detect those keywords and can able to identify the relevant department. So considering your letter, problem letter, it will draft the email and then send that your complaint to that concerned department and will give you a received stamp, like a stamped received. Yes, you have filed your complaint to that particular concerned department. So basically this device scan, detect keywords, draft a mail and automatically send that mail to the concerned department's mail ID and gives you a receipt in which it is stamped like yes, you have filed a complaint. So this is what is a disease shoot created and ideated by these two students. Same goes with one of the another project which is MadBot, which is
created by two students of ITL Public School, Dwarka, New Delhi. These are students are Nitesh Thareza and Ayush Gupta. They have created a mad bot considering the healthcare domain. Now, what they do? Same problem. We have some symptoms, we have some problems in our body, but yeah, we have some symptoms. हमारे पास कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ डिजीज हो जाती हैं बॉडी में, बट वी कांट एबल टू गो टू द कंसर्न डॉक्टर. लाइक गायनोकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम को लेके हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि कौन से एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस प्रॉब्लम को लेकर. तो हमारे आसपास जो भी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं हम उसके पास चले जाते हैं, या फिर और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका हम नहीं पता कर पाते हैं और वो एक बड़े प्रॉब्लम को लीड कर जाते हैं और इट कैन लाइक डिस्टर्ब आवर बॉडी फंक्शन. सो these two masters has created a AI enabled machine which is very easy interface for the people, like जहाँ पे medical facilities का बिल्कुल access नहीं है, तो they have created a form kind of thing where the machine will ask you some questions. आपसे कुछ questions पूछेगी वो machine related to your symptoms जो आपको बीमारियों के लक्षण दिख रहे हैं, रिलेटेड टू योर बॉडी एक्टिविटी, स्लीप साइकिल, ऐसे करके टेम्परेचर, उसको लेके आपकी कुछ क्वेश्चंस पूछती है. आपके लक्षण, बॉडी टेम्परेचर और इन सबको एनालाइज करते हुए आपको सजेस्ट करती है, प्रेडिक्ट करती है कि देयर मे बी दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और ये समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं. इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लीजिए. सो दिस इज व्हाट इज क्रिएटेड बाय दीज टू मास्टर्स. सो कंसीडरिंग ऑल दीज, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड व्हाई नॉट टू एम्पावर आवर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स. हम अपने सरकारी बच्चों को भी क्यों ना इन AI स्कूल्स, AI करिकुलम के साथ भविष्य के लिए एम्पावर करें. इसीलिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक ये प्रोग्राम के साथ न्यू रखी जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, जो प्रोग्राम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है. इसकी लॉन्च वीडियो हम प्ले कर रहे हैं इधर पे, एंड हमारे कलीग अक्षय गुप्ता ने आपको एक चैट सेक्शन में लॉन्च वीडियो आपको भेजा है. यस, तो आप वेबसाइट पर जाइए ये, एंड इधर पे ये वेबसाइट पे लॉन्च वीडियो है, इस पर क्लिक कीजिए. प्लीज हैव अ लुक एट दिस लॉन्च वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अराउंड इट. मैं प्ले करूंगा बट आपके पास ऑडियो नहीं आएगा वीडियो का, इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज ये जो लिंक आपको भेजा गया है responsiblei4youth.negd.in/home, इस पर क्लिक करिए. आप इस पेज पर लैंड होंगे. जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे आपको इधर पे क्लिक करना है लॉन्च वीडियो पर. जैसे ही आप इस पर जाएंगे एक वीडियो प्ले होगी. प्लीज हैव अ लुक, आप उस वीडियो को देखिए and then we will discuss about this program. We are entering an AI-fueled economy. It is imperative to prepare our future workforce by fostering the necessary skill sets, mindset, and tool sets for AI readiness. This will enable youth to become human-centric designers who can create and apply real AI solutions to solve social impact issues. National E-Governance Division, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India
and Intel India मेरे प्ले have करने पर collaborated to आपको launch a आवाज national नहीं आई। program, मैं प्ले कर Responsible रहा हूँ AI बट for आपको आवाज Youth, नहीं आएगी, empowering ये youth आप to सिर्फ become AI इसमें ready आप in the most लिंक inclusive पर manner. जाकर अपने डिवाइस पर स्वतः There are देखिए। children also in government schools who can't afford. But we can never say they don't have talent. What they don't have is the opportunity. And let this program create opportunity for young people. The aim of this program is to democratize AI in the most inclusive manner to enable youth from rural and remote corners of India become an AI-ready generation. Through this program, we will demystify AI and enable youth with skill sets and mindset required for AI readiness, democratize access to AI tools, and train youth to use them skillfully. Enable them to create meaningful social impact solutions as an evidence of achievement. The program is only for students from class 8 to 12 from government schools pan-India. The program has 3 phases. The youth will undergo 176 hours of well-researched, engaging, flexible, modular and experiential content. Structured over 33 modules, the 4-stage learning journey from inspire to acquire to experience to empower will help equip the participants with a wide range of AI-related technology and social skills and give them the confidence to create AI-enabled social impact solutions. I hope you all have seen this video. Yes. So this is the launch video for our program. So basically मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था। उन प्रोजेक्ट्स में कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए थे, जैसे कि एक स्कूल है सलमान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल व्हिच इज situated in New Delhi. So there are 3 girls of those school. So those have created this project which is named as Happiness Guru. So what they did, so they have created basically AI model. उन्होंने एक AI मॉडल क्रिएट किया जो कि प्रेडिक्ट कर सकता है स्कूल चिल्ड्रन के अमंग onset depression, like whether that particular child is going through that depression or not. If that's so, then that system can notify to the concerned teacher and guardians of that particular student. Now, as I have already told you, all the AI model works on the data. वो अपने मशीन को AI मशीन पहले अपने आप को सिखाती है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। और पास्ट एक्सपीरियंस कैसे आते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस आते हैं डेटा से। सो व्हाट दे स्टूडेंट्स डिड, दे हैव curated 700 data sets from the 700 different school students from the Indian school फ्रॉम एज बिटवीन 14 से 16। उन 3 बच्चों ने क्या किया, उन्होंने 700 बच्चों का डेटा लिया जो कि 14 से 16 साल के बीच के उम्र के बच्चे थे। उनका एक सर्वे किया। दे
these three girls asked some kind of questions, general questions from those 700 plus students, and after that medical and professional help की वजह से हेल्प लेकर उन्होंने उस डेटा सेट से कंफर्म किया आउट ऑफ दो 700 प्लस स्टूडेंट्स हाउ मेनी आर like currently going through onset depressions and how many need counseling and how many are normal. ये डेटा को प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट एंड इन लोगों ने वैलिडेट किया एंड आफ्टर दैट उस डेटा सेट से एआई मॉडल को ट्रेन किया गया. उसके बाद जब उसको एवेल्युएट किया गया तो इट इज गिविंग अस वेरी करेक्ट डेटा about the depression of school children. Because अभी तक ये डेटा अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो फॉरेन स्कूल स्टूडेंट्स का ऑनसेट डिप्रेशन का डेटा अवेलेबल था. बट one of the achievement for this project is those three girls have curated, like collected this 700 test cases of Indian school students. I know this is very small data for any AI model, but yes, they have achieved in a very short time to curate from 700 school students to train that model. Same goes with one of the another government school, which is Kasturba Balika Vidyalaya, Ishar Nagar, Delhi. These two girls, Khushi Pandey and Bhumika Sharma, has created a drowniness monitor AI-enabled system, which is to ensure safety of passengers and pedestrians by detecting drowsiness of the driver. This system will help in reducing the road accidents by alerting a driver, raising an alarm, and keeping him awake. So basically, ये device using computer vision, using image processing, what it is doing, it is trying to detect the drowsiness of a driver who is actually driving a vehicle and give him a alarm like, yeah, you need to keep awake because you are driving. So this help us to reduce the road accidents. So these are some projects which lead us to launch this wonderful program, which is responsible AI for youth for our government schools. Like, why not to empower, why not to give a resource to government schools to empower them and to make them AI ready. So that's why government in collaboration with Intel has launched this program. So if we talk about the overview of program, this program is to reach out to students from the government schools pan India and provide them with the opportunity to become a part of skilled workforce for considering this emerging technology. There are some key objective is to demystify AI for youth and equip them with the skill sets and mindsets required for the AI readiness. Means AI को अडॉप्ट करने के लिए, AI को डेमोन्स्ट्रीफाई करने के लिए we help them to equip with some skills and mindset which are very much required to learn and experience the AI. To democratize access to AI tools and train youth to use them very skillfully. To enable youth to create a meaningful social impact solution as a evidence of achievement. Means if we learn AI, then also we need to learn like where we can apply this technology, because there is a good and bad use of any technology, because AI is a tool. AI एक यंत्र की तरह है जिस टूल का हम
किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं. इट कैन बी इन अ गुड यूज. इट There may be some students or there may be some people who can use it in a bad use also. So that is why it is very much important to ask them or to develop a mindset like they can create a meaningful social impact solution by learning this AI. So basically, there are three phases of this program. We are right now in a first phase, which is teachers who are onboarded through self-nomination or support from the state education departments, because this program is launched by central government. Central government has asked all the state education departments to nominate school teacher for this program, or there are some teachers who got to know about this program and they have onboarded by self nomination. And then after that we will organize online orientation like this is the first webinar of online orientation for the teachers, and after these two webinars we will ask you all teachers to identify and nominate 25 to 50 students, and ask you all to register the list of those students, and then we will organize orientation and training session for these your nominated students, covering introduction and ideation process. After that we will encourage students, हम बच्चों को encourage करेंगे कि वो ऑनलाइन चैलेंज में पार्टिसिपेट करें. उस ऑनलाइन चैलेंज में होगा क्या, उस ऑनलाइन चैलेंज में बच्चों को AI enabled solution को लेके प्रपोज करना है. They need to register their idea which is AI enabled. उसका एक वीडियो क्रिएट करके सबमिट करना है. उसके बाद फेज 2 में बच्चों ने जो अपने प्रपोज्ड AI enabled आइडियाज को रजिस्टर किया है, आउट ऑफ दैट वी विल सेलेक्ट 100 shortlisted. We will shortlist 100 ideas, and then students of those 100 shortlisted ideas will be invited to attend residential boot camps or online session considering the current situation, current pandemic situation, and we will work accordingly and to take them through deep dive AI journey. फिर हम उन 100 आइडियाज के बच्चों को पूरा AI कंटेंट के साथ गो थ्रू होंगे, बच्चों के साथ उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे थ्रू AI सर्टिफाइड AI कोचेस के द्वारा. उसके बाद पोस्ट द बूट कैंप्स ऑनलाइन सेशन, स्टूडेंट विल आस्क टू सबमिट देयर फाइनल प्रोजेक्ट इन द वीडियो फॉर्मेट. फिर उन बच्चों को AI करिकुलम से गो थ्रू होने के बाद बच्चों को पूछा जाएगा, एनकरेज किया जाएगा टू सबमिट देयर फाइनल प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट सबमिटिंग द प्रोजेक्ट we will select of 50 project out of the 100 that will be shortlisted, and students will be invited to showcase their project in the face-to-face or in the virtual showcase scenario. It will again considered according to the pandemic situation, considering the pandemic situation, and then out of those 50, top 20 innovative projects will be declared as a winner and provided further opportunity. Then we organizers will provide them further opportunities to showcase in the relevant platforms to showcase their idea. So this is what the journey and the phases of this program. We will right now we are in the first phase of the orientation of the teachers. फिर उसके बाद हम teachers को we do not call teachers, we will call mentors. Mentors is a good term here to like introduce you all. तो हम आप सब mentors को
इनकरेज करेंगे कि अपने स्कूल से, आसपास की लोकेलिटी से भी अगर आपको लगता है कुछ बच्चे हैं, यू कैन नॉमिनेट मिनिमम 25 टू मैक्सिमम 25 50 स्टूडेंट्स। उसके बाद हम उन बच्चों की हैंड होल्डिंग करेंगे, इनकरेज करेंगे, ऑनलाइन ओरिएंटेशन करेंगे, बच्चों को आइडिएट करने की को प्रयास करेंगे, जिससे बच्चों को अपने आइडियाज सबमिट करना है। उन बच्चों को आइडियाज सबमिट करने के बाद हम 100 आइडियाज को सिलेक्ट करेंगे। उन 100 आइडियाज के जो बच्चे हैं उनको हम पूरी एआई जर्नी, पूरे एआई करिकुलम के साथ गो थ्रू करेंगे। फिर जब गो थ्रू होने के बाद व्हेन दे हैव लर्न कंप्लीट एआई करिकुलम, देन वी विल आस्क देम टू सबमिट देयर फाइनल प्रोजेक्ट इन द वीडियो फॉर्मेट। फिर उन बच्चों को प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आउट ऑफ दोज 100 वी विल सेलेक्ट टॉप 50 एंड उन टॉप 50 का एक शोकेस ऑर्गेनाइज कराएंगे। शोकेस कैन बी इन अ फेस टू फेस और इन अ वर्चुअल शोकेस कंसीडरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन। एंड आफ्टर दैट हम उन 50 में से ऑर्गेनाइजर्स विल सेलेक्ट what top 20 innovative projects that will be the considered or declared as a winner for this competition or program. So this is what is the phases of this program. Now we are here to going to discuss a role of teacher as a mentor, which is you all. So now your responsibility is to active participation in the online orientation program, which is right now going. After that, enroll and guide the potential students. आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप लोगों को पोटेंशियल स्टूडेंट्स को इनरोल करना है। Ensure maximum participation by the students in the program. Reach out to the assigned mentors to receive assistance. हम लोग आपको एक असाइन मेंटर्स भी असाइन करेंगे जिनसे आप अपने रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन सेशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जो आप लोग इनरोल करेंगे, बच्चों को नॉमिनेट करेंगे, उनका भी पार्टिसिपेशन अच्छा हो, ये आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप कोऑर्डिनेट करें। प्लस इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन एंड सबमिटिंग their idea. So this is all is the role of responsibility of the mentors. And after that, there are some student selection criteria, which are basically this is only for the government school students from class 8th to class 12th. Students should have an interest in science, technology, programming, or mathematics, or in robotics, electronics, mechatronics, and aptitude for the logical reasoning and analytical skills. Students should have innovative mindset, critical thinking, or out of the box thinking. And then they, if it will be wonderful if they have a work experience in some kind of science, computer science projects, or a project development, or in the project development, or their students may, it will be wonderful if they have represented their schools in different kinds of competitions, conferences, national fairs, quizzes, olympiads, or it is requested to please nominate students who have access to the digital devices like smartphone, PCs, laptop, and good internet connectivity. So these are basically a required suggestive criteria for the student selection. So here, if you have any questions, so please let us know. Before taking questions, let me share one more thing with you all. How to register your students. There may be your query like after nomination, how to register students. So let me share that thing with you all.
So when we go to this website of the program, which is NEGD, we are providing Excel sheet to upload. When we go to this program website, which is responsible AI for you.negd.in, we will go with home. Here at home we can able to find about the program and the launch video, and if we want to know about the program we can go here. This web page is all about the program, key features, key objectives, about the phases which we have discovered already discussed. And after that, if we want to download the information manual, we can download here. And then when we go to this trainer corner, this is for student registration. When we go here, there is a tab of register students. When we click on this, so we will land on this web page. Here the student registration submission, you may download the student registration details template from here. So when you click on here, you will be able to download one Excel file which is will be in a template which we have already created for you all. So this is the template which we all need to use. It is requested to not hinder or experiment with this template. Please do not disturb this arrow or column, and please do not change it. Please do not create any change in this template. It can create an error in uploading your registration. So this is the template where you need to fill all the details: name of the teacher, school name, and the student full name, class, gender, mobile number, email ID. So when, after filling all these registration, please save this Excel sheet. Please save this Excel sheet. After that, come to this web page. Please type your teacher ID, whatever the teacher ID is assigned to you by the registration confirmation mail. So we organizers have already sent you a registration confirmation mail. In that registration confirmation mail, we have assigned a teacher ID to you all. If you will not have this teacher ID, you can call us on a helpline number or email us. We will assign you teacher ID. So after putting here your teacher ID, please go to this upload section. Please select that particular Excel file. And after selecting that Excel file, please submit this button. So through this process, you can able to register your students. After that, this is the resource where you can download information manual in different languages in which you are comfortable with. After that, there are the FAQ document for teachers as well as for the students. Please, it is requested to go through this so that there are, if you have some kind of common query which can be solved through this FAQ documents. So it is requested to please ask your queries. If you have any kind of query, please ask us, let us know your query. Our team has already shared a helpline number. If you don't have, or if you have not received the registration teacher ID in your registration confirmation mail, please call on our helpline number. It is already requested you all to please do not hinder or experiment with the template sheet. Please do not edit or make change in the template sheet. Sir, when you have sent this जी teacher's ID, सर, hello, आपको एक रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल आया होगा. उस रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल में आपको एक टीचर आईडी प्रोवाइड की गई होगी. अगर आपको अभी कोई तक टीचर नहीं आया सर. जी कोई बात नहीं अभी सर, आप इस जी आप एक बार चेक कर लीजिएगा. और अगर नहीं आया हो तो आप प्लीज इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, हम लोग आपको भेज देंगे. ओके सर.
Thank you. Anyone who have any specific scope which can be told to students? Yes, sir. Sir, I जी have a one query. जी Sir, actually, I'm from UP, उत्तर प्रदेश स्टेट. सर, हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं उनमें गवर्नमेंट स्कूल आसपास कई सारे मतलब हमारे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल्स हैं, तो क्या स्टूडेंट्स हम अपने आसपास के एरियाज के स्कूल से भी ले सकते हैं? ये जी मैम, कंपल्शन आप तो नहीं है कि हमें सिर्फ नहीं अपने स्कूल से ही लेना है? नहीं मैम, आप अपने स्कूल आसपास लोकेलिटी से भी बच्चे ले सकते हैं, बट ओके. प्लीज स्टूडेंट मस्ट नॉट बी लेस देन 20. ओके सर, तो Yeah. 25 स्टूडेंट्स का विल बी एक वन ग्रुप और 25 स्टूडेंट मींस 25 आइडियाज. सर ये क्लियर कर It will दीजिए. be it will be worked according to when we will ask them to submit the idea. They can ideate they can submit their ideas in group 2. So वो हम बच्चों को अपने जब सेशंस लेंगे हम बच्चों को गाइड करेंगे. सर हमारे यहाँ बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, सो दे हैव ओनली फोन. हाँ तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव लैपटॉप? नहीं मैम, we are working on this because right now there are some areas where only mobiles are there for like with the students, so we are working on that. Please register, we will work on that. No issue. सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है कि बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, और पीछे बहुत सारे वर्कशॉप्स ऐसे हुए जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट इसलिए इशू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट तो पढ़ लिया पर वो प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, उनके पास लैपटॉप नहीं था. तो यही प्रॉब्लम मेरी भी है, मैंने भी चैट बॉक्स में भी दिया है. तो इसको कैसे हम सॉल्व करें? बहुत से बच्चे बहुत से बच्चे इसीलिए अपना नाम देते नहीं है कि मैम हमारे पास डिवाइस नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? जी. So it is requested to Anup sir to please take this question. हेलो सर. एक क्वेरी मेरी भी है इससे रिलेटेड. हेलो सर. जी. हाँ सर, मैं शामली से मोहम्मद यामीन सर, मैं भी बेसिक एजुकेशन से हूँ. हेलो सर. जी सर प्लीज. हाँ सर, जैसे ही मैम ने बताया देखो सर, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है. अब जैसे आपने हमें बताया कि हमें 25 से 50 स्टूडेंट्स हमको सेलेक्ट करने हैं, उनके प्रोजेक्ट हमें सबमिट करने हैं. लेकिन सर जैसे हमारे यहाँ एक पहले इंस्पायर अवार्ड चलता है हर साल, उसके लिए नॉमिनेशन किए जाते हैं, लेकिन वो हम अपने स्कूल के ही बच्चों को करते हैं सर. लेकिन जैसे आपने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है, अब हम अपने स्कूल में तो चलो कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो एडवांस फैसिलिटी नहीं है. अच्छा, लेकिन उसके बाद सर अगर स्कूलों में अगर इस बात की जाए, रिक्वेस्ट करें, पहले तो आपने इसमें जो आपने हमारे पास लेटर भेजे थे, इसमें आपने डेडलाइन दी थी कि 3 जुलाई तक हमको इनको बच्चों को नॉमिनेट करना है. सर अभी आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से स्कूल अभी बंद हैं और बच्चे पता नहीं कब तक आएंगे स्कूलों में. दूसरी बात कि अगर इंटर कॉलेज वालों के जो स्कूल हमारे आसपास जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, ये शायद कुछ बच्चे वहाँ से हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात क्यों मानेंगे? हमें ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि भाई हमें जो है लेटर हमारे नाम का ही मिला है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी बात क्यों मानेंगे? अच्छा जी. सर जैसा कि हम आप जी प्लीज अनु. हाँ सर, आपकी बात क्यों मानेंगे? देखिए, जो आपके स्कूल के बच्चे हैं आप उनको नॉमिनेट करिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि इसमें कोई जोर या जबरदस्ती, इट्स नॉट फोर्स्ड थिंग, अगर जो सेल्फ इंटरेस्टेड है या आपके बताने से, इस प्रोग्राम के बारे में उनको बताने से दे गेट मोटिवेटेड या सेल्फ इंटरेस्टेड, उन्हीं बच्चों को आप करिए. ये कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है कि हम दूसरे स्कूल्स में जाकर बच्चों को जो है सिलेक्शन करें और फिर वो करें. आपकी बात सही है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स हो या प्रिंसिपल हो या अभिभावक हो, वो ये बोलेंगे भाई कि हमारा बच्चा क्यों ज्वाइन करे, हमारे पास कोई लेटर नहीं है, कोई एटसेट्रा नहीं है. ये हम ये बात कर रहे हैं, अगर आपके विद्यालय में 25 से 50 की संख्या हो जाती है, और अगर आप इसका एक बच्चों के हित में, अगर आप चाहते हैं कि भाई इस प्रोग्राम से और भी बच्चे से लाभान्वित हो, उससे फायदा उठा पाए, तो आप आसपास के अपने विद्यालयों के बच्चों से, अपने दूसरे स्कूल्स के, सरकारी स्कूल के विद्यालय से बात कर सकते हैं. अगर वो इंटरेस्टेड है, वेल एंड गुड. इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं सर. जी सर. तो सर जैसे हम बेसिक एजुकेशन से हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे सिलेक्शन हुआ है, बल्कि आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो और नहीं है. हम आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से सर? हमारा शामली डिस्ट्रिक्ट है सर.
और ऑल अच्छा यूपी से शामली। 20 टीचर्स को आपने सेलेक्ट किया है सर। तो सर सर जैसे देखिए, हमारे सर प्लीज हाँ प्लीज सर, हमें बीएसए साहब ने हमको लेटर दिया है, तो क्या हाँ हम बीएसए साहब से कहकर सभी हाँ, स्कूलों में इसको जो एक ऑर्डर जो है इशू करा दें कि भाई अपने यहाँ से बच्चों को ऐसा नॉमिनेट कराएं, और सबका ग्रुप बना करके अगर 25 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो हम एक ग्रुप बना करके आप तक भेज दें, ऐसा हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है सर। आप शामली से हैं, मैं देहरादून से हूँ, हम आसपास से ही हैं। सो सर बात यह है कि देखिए, जो आपके जो बीएसएस सर्वेंद्र विक्रम जी सर के वहाँ से ऑर्डर है, आप उसमें तो आप अपने बीएसएस सर से बिल्कुल बात कर सकते हैं और उनको इस प्रोग्राम की फायदे बताइए कि ये प्रोग्राम कितना अच्छा है और नेशनल लेवल का प्रोग्राम में, जो कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए पहली बार इस प्रकार से कोई प्रोग्राम निकाला गया और ये फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक ऐसा बीएसएस सर से बात करके सभी अपर प्राइमरी विद्यालयों के लिए एक लेटर सर्कुलर निकलवा सकते हैं और उसमें ये फोर्स मत करिए, जो इच्छुक है वही इसके अंदर शामिल हो और अपने स्कूल से, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 8 में 10-15 मैक्सिमम, अगर बहुत ही बड़ा स्कूल होगा तो 20-25 बच्चे होते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच इन सब जिलों में मैंने काम करके देखा है, इससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं होती है। तो अगर आप इस प्रकार से कर सकते हैं तो ये बहुत सराहनीय कदम होगा और एक आप पूरे बच्चों के साथ भी इसको एक शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आप प्लीज करिए सर। अच्छा सर, अगर 25 बच्चे नहीं होते हमारी हाँ, कोशिश में, तो फिर हम क्या करें सर? कर से तो जितने हैं उतने कर दीजिए सर। 25 से एक लिमिट, लास्ट कट ऑफ थ्रेशोल्ड रखा गया था, लेकिन हमें ये मालूम है कि बहुत जगह अपर प्राइमरी स्कूल में, खास तौर पे हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूल थे जहाँ पर 25 तो पूरे स्कूल की जनसंख्या होती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो आपके जितने हैं और जो इच्छुक है आप उनको नॉमिनेट कर दीजिए। 25 हो जाते हैं बहुत ही बढ़िया, नहीं होते हैं तो अपना आपको इस बंदिश में मत रखिए कि आप इसके लिए बच्चों को नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर? अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये जो अभी मैडम ने पूछा था कि जैसे बच्चों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, जी सर। कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं, तो सर फिर वो क्या करें सर? सर देखिए, इसीलिए कोशिश करिएगा कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करें जी एटलीस्ट उनके अभिभावकों के पास हो, और क्योंकि इसमें उनको 24 घंटे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज नहीं पड़ेगी, जब सेशन होगा तभी जरूरत पड़ेगी। और जब आप जिस प्रकार से आपने ये बोला है कि बीएसए सर से आप करवा सकते हैं, उसमें लिखिए कृपया उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करें जिनमें एटलीस्ट उनके अभिभावकों के पास हो। और अगर एक कोई ऐसा बच्चा कोई है जो बहुत ही इंटरेस्टेड है लेकिन किसी वजह से उसका संसाधन नहीं हो पा रहा है, तो एक टीचर के रूप में हम लोग हमेशा मदद कर ही सकते हैं सर इसमें। जी जी और आगे जब जरूरत पड़ेगी तो सर ऑब्वियसली हम उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जी सर। सर तपन इंदौर से बोल रहा था। जी सर। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे 60 इनको बच्चों को नॉमिनेट करना है और यस इनकी सर। डिटेल्स अपन को डिटेल्स भेजना है, जी तो सर। अभी जैसे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं, यस इन सर। बच्चों में जैसे अभी आपके पास आया ही है कि कई बच्चों का लैपटॉप, क्या इवन हमारे पास स्मार्टफोन्स भी बहुत कम बच्चों के साथ रहते हैं, या तो इन सबको हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनको आगे कराना चाहते हैं, तो एक छोटा सा हमें हैंडआउट या ऐसा कुछ डिटेल्स दे दिए जाए ताकि बच्चों की हम इंटरेस्ट क्रिएट के बारे में जानकारी दे सकें, उन बच्चों को बोल सके कि इस विषय में एक प्रोग्राम सेमिनार अपना है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको पूरी जानकारी दे सके और वो सिलेक्टेड बच्चे ही हमारे पास आ सके। ऐसी कुछ टूल्स मिल सकता है क्या सर हमको? सर आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम इस सुझाव पे काम करके जो है कोशिश करेंगे कि बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, और उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट करके वेबसाइट के ऊपर डाल दें, जिसको आप बच्चों के साथ शेयर करके उनको दिखा के उनका इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। साथ ही जो वीडियोस, प्रोजेक्ट वीडियोस शिवम ने आपके साथ शेयर करे हैं, 4 प्रोजेक्ट वीडियोस, उनको भी हम हिंदी और वेरियस अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके वेबसाइट पर डालेंगे, जिनको आप डाउनलोड करके बच्चों को दिखाकर उनके अंदर उनके आत्मविश्वास को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाकर उनको उनका इंटरेस्ट जागरूक कर सकते हैं सर। जी 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 सर, वही चाहिए ताकि बच्चों बिल्कुल को सर। थोड़ी जानकारी मिले ताकि हाँ वो सर। अपने क्रिएटिव आइडियाज निकाल सकें। ये तो अभी बिल्कुल क्या सर। होगा कि अभी हमको बोलना पड़ेगा कि आप ये करें, वो जब तक नहीं उनके खुद के क्रिएटिव आइडिया नहीं आएंगे तब तक मजा नहीं आएगा सर किसी काम को करने में। वो बिल्कुल उसका हमारा और आप सभी का उद्देश्य ये भी है कि जो क्रिएटिव आइडिया वो बच्चे का ही हो, हम केवल उसको और मजबूत और स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे। और ये जो है इसीलिए हम लोग सारा कंटेंट भी वेरियस लैंग्वेजेस में डाल रहे हैं कि बच्चा उसको समझ सके और क्रिएटिविटी के रूप में आगे बढ़ा सके। ठीक है सर। तो ये हमें ईमेल पे मिल सकेगा सर?
सर ईमेल पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हैवी होगा, आप समझ सकते हैं वीडियोस, लेकिन जो अच्छा। हमारी वेबसाइट है, जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ वाली वेबसाइट है, हम उस पे डालेंगे, उस पे आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है हमें जो अभी लिंक आपने चैट बॉक्स में दिया है वो हमारी आप जो है हमारे पास भेजी, जिससे आपने हमारे पास जो है ये अभी एसएमएस किया था। सर कौन सा लिंक? ये वीडियोस का सर जो आपने दिखाई हमको दो, हाँ 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 हाँ, तो इनका इसका लिंक क्या करना है सर? हमें एसएमएस पर हमें आपकी तरफ से मैसेज मिला था ना, अगर हमें एक आप लिंक हाँ भी शेयर कर दें हमारे नंबर्स पे। सर हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि लिंक्स छोटे ही अगर आप कहीं पर लिख लें, हम फिर भी इसको कोशिश करेंगे कि आपको जो नेक्स्ट राउंड ऑफ कम्युनिकेशन हो ईमेल या, तो उसमें हम सारे लिंक्स को एक बार आपके साथ शेयर करते हैं। बट आपसे निवेदन ये है कि फिलहाल इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अपने मोबाइल से, तो आपके पास रहेगा, या फिर लिख लीजिए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग भेज सकें। सर जो बच्चों का हमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि सर जैसे कि अभी कोविड की वजह से स्कूल सारे बंद हैं, तो जो हमारे काफी अच्छे बच्चे हैं अभी उनसे हम लोग इतना कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो जी मैम। हमारे पास कितना डेडलाइन है सर, हम कब तक अपना मैम ये 6 सबमिशन कर जुलाई सकते हैं? मैम, हम जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, दैट इज फॉर हाँ 6 ठीक है मैम। जी 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 और सर उसके हाँ, तो 6 तक हम लोग कर सकते सर एक क्वेरी और है यहाँ पे। हैं। जी एक बार आप जो अ, है सर जो हेलो बच्चों के पास न्यूनतम हेलो सर संसाधन हो, हेलो न्यूनतम संसाधन के बारे में एक बार शेयर कर दीजिए ब्रीफ, कि जब हम सिलेक्शन हेलो करें स्टूडेंट्स का सर, तो एक उनके एक पास करके क्या क्या बोलिएगा। हो। सर डेडलाइन डेट प्लीज एक बार बोल दें। 6 जुलाई सर। 6 जुलाई, ओके सर। सर फिर एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे पहले भी किया था, जो मैडम ने पूछा है सर, कि जैसे कोविड-19 की वजह से शायद हमें लगता है कि अगस्त से पहले बच्चे ना आए, तो हम कैसे करें सर फिर? सर मेरा आपसे ये निवेदन है, देखिए आपको ये मालूम है कि आपकी क्लासेस में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो काफी समय से पढ़ रहे हैं, और जो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में, जो प्रेजेंट सत्र में बच्चे होंगे, आपको मालूम है कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा इंटरेस्टेड हो सकता है। तो इनिशियली आप उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके उनका डिटेल भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि 6 जुलाई के बाद और बच्चे इंटरेस्ट हो रहे हैं, आप हमें मेल भेजकर उनके नाम और ऐड करा सकते सर एक क्वेरी मेरी है कि हैं। जो बच्चे हम अपने स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल से लेना चाहते हैं, पहला कि क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से ही होना चाहिए? जी मैं बिल्कुल, गवर्नमेंट, ये प्रोग्राम ही गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, जी। गवर्नमेंट। और दूसरा ये कि जब हम उन्हें रजिस्टर करेंगे, तो हम उसे अपने स्कूल के नेम के अंडर ही रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हम तो एक ही हेड के अंडर वो 25 या 50 बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं। नहीं, तो उसमें जो डिटेल मांगी गई है, तो उनका स्कूल आप वही रख सकते हैं, कोई इशू थोड़ी है उसके अंदर। क्योंकि टीचर्स नेम और स्कूल नेम ऊपर कॉमनली एक ही कॉलम दिखा मुझे, हाँ, वो नीचे तो एक बच्चों के नाम और हाँ, उनके पर्टिकुलर्स हैं, यस यस, सो यू, तो वो सो हमारे स्कूल के अंडर ही वो बच्चे मैम रजिस्टर होंगे। उसमें एक्चुअली क्या है कि वो स्कूल के अंडर का अंतर नहीं, एक मेंटर के अंतर्गत रजिस्टर होंगे। अगर आप अच्छा, बाहर के स्कूल्स को भी करते हैं, दैट मीन्स यू आर देयर लोकल मेंटर, तो आपके ओके। नेम के साथ अटैच हो रहे हैं, जी रजिस्टर जी हो जी, रहे हैं। ठीक ठीक है। ठीक ठीक, क्योंकि कल ही कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा और मैंने इन द जी मेन टाइम उनको मना किया कि कई बच्चे नहीं पूछ नहीं, रहे थे कि मैम हमारे हाँ कुछ बिल्कुल फ्रेंड्स समझ हैं, रहे हैं। जी तो मैंने उन्हें मना किया, पर आज मैं उन्हें हाँ कर दूं फिर कि वो बच्चे आ सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो। जी बिल्कुल मैम। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक ओके मैम। क्वेरी Sorry to है, interrupt, अगर आप Anup sir, in between. जी There are some teachers. I'm calling the name. Yashovardhan, Mr. Tapan Jindal, Mr. Rajesh Bhargav, DP Sen 060179, Khurshida Khan, Jitendra Chauhan, Anita Gandhra and administration. ये एडमिनिस्ट्रेशन यूजर आईडी से जो लॉगिन है, ये 8 लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपना स्कूल का नाम प्लीज इधर पे चैट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर नहीं किया है
So it's requested to register. And may I know from where? Teachers request to please mute your mic. I hope there are some mics are mute. Anup sir, can you please mute your mic? Yeah, thank you. So it's request to all the teachers. Announce teachers' name which we have announced, like Yashovardhan, Mr. Tapin Jindal, Mr. Rajesh Bhargav, DP Sen 06179, Khurshida Khan, Jitendra Chauhan, Anita Gandhra, Administration. May I know from where you have received the details for this webinar to join? And please introduce yourself in the chat section along with your school name. Thank you. If you have any questions, please ask us. Anup sir will take the questions. Sir, good afternoon, sir. Hello. Hello, sir, good afternoon. हो रहे सर। Hello, sir. Did you hear my voice? तो सर सर इतने स्टूडेंट्स हैं। हेलो सर, अगर आपके पास इतने स्टूडेंट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, देखिए दो चीजें हैं सर। 25 से 50 का इसलिए रखा गया है कि जो इंटरेस्टेड है, हमें नंबर्स का मतलब नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्टेड हो, बिकॉज देखिए आपको उनको लोकली सपोर्ट मेंटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए तो जितने बच्चे आप चाहते हैं उतने आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 50 आपके वहां पर 50 से अधिक बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है और कर सकते हैं, प्लीज सबको आप करवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर। ये बता दीजिए। जी सर। हेलो सर। हाँ सर, बोल रहे सर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकते हैं, जैसे हम शामली में हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं सर? हेलो। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों को मेंटर